We will wait for a few minutes for others to join, then we will start. So am I both audible and visible to you? Yes, sir. And Both audible and visible. who is the host? Karthik? Yes, sir, I am the host, Ashutosh. I think now we have to start. We are starting the meeting. तो आप सभी को नमस्ते। आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और दक्षी परिवार की ओर से। दक्षी के कार्यक्रम में सरस्वती वंदना के साथ ही शुरू होता है। जब भी हम करते हैं पहले सरस्वती वंदना होती है। तो मैं अमित जी से कहूंगा कि वो सरस्वती वंदना के लिए सरस्वती वंदना स्टार्ट करें। अमित जी। सरस्वती भगवती So we have to start. I will give a short introduction of Dakshi, first of all. Dakshi is a movement that seeks to reawaken the ancient Weaver knowledge system of India. Through this movement, we strive to bring ancient knowledge to the modern world. This includes the study of ancient texts and practices, engaging in discussion and debate, conducting research, hosting lectures, participating in competitions and workshops, and more. By doing so, the movement hopes to make the ancient knowledge more accessible to everyone and to bring it to the forefront of today's society. Meaning of word Dakshi is derived from the Sanskrit word Daksh, which means strength or competent. Dakshi also means glorious, which represents Bharat's glorious past to this movement. So through Dakshi, we would give strength to the ancient knowledge in reviving itself. And we have our speaker, Mr. Sumit sir. I would like to give a short introduction of Sumit sir. Mr. Sumit Kumar has done his BA, MA, MPhil in history. He taught history and served as a faculty at Kirodi Mill College, Miranda House College, University of Delhi. He has great experience in research and has already written many research papers and journals. Now I would request Amit Ji, our Chief Executive, to welcome our guest. सभी को नमस्ते। आज युवा दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए, तो सबसे पहले तो युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इसके बाद आज सुमित सर हमारे साथ जुड़े हैं,
सुमित सर को इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे सौभाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि सुमित सर के हम सभी यहाँ पे जितने लोग किरोड़ीमल या मिरांडा हाउस से जुड़े हैं वो स्टूडेंट रह चुके हैं। पहले तो मैं सुमित सर का बहुत बहुत वेलकम करूंगा कि उन्होंने हमारे आगरा पे आज का सेशन ज्वाइन किया। Thank you, Amit. Welcome, sir. Being your student, Thank we you have very learned much. a lot from you. Thank you very much for such a kind of, Today is just another, yes. Today just another day to learn from you and to know about your ideas. We have students joining from different colleges of Delhi University and also from different colleges of India. So, sir, today our topic for the discussion would be understanding the philosophy of Swami Vivekananda ji. So, sir, I would request you to please throw some light on Swami ji's thought. Over to you, sir. Okay, am I audible to you? That means my voice is quite clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So Yes, thank you first for inviting me and giving me an opportunity to express myself. It's always a kind of a great thing to speak about a great man, and I am very thankful to all of you. And I'm not seeing Akshit. Is Akshit here in the meeting? Sir, So for now, he is not there. He will be joining in 5 Okay. minutes. Okay, so I and मैं आप सबकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि दक्षी, मुझे पता है कि ये जस्ट ये कब ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से इसका ग्रोथ हो रहा है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो इनटू अ बिग थिंग, ओके, जस्ट इन द कमिंग ईयर्स। इसमें ये हिंट मुझे देखने को मिल रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, and so my all the best wishes are here, and this ये आज युवा दिवस भी है, यूथ का मौका भी है, और दक्षी क्योंकि पूरे के पूरे इसमें देखिए तो पूरी टीम ही यंगस्टर्स की है, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, सो एक तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, ओके, टू हैव इन दिस मच ओके टाइम, मतलब काफी कम समय में काफी कुछ अचीव करने के लिए, ओके। एंड नाउ आई विल जस्ट कम टू माय टॉपिक, है ना, और स्टार्ट कर सकते हैं। अब मुझे दो चीजें आप बता दीजिए। द फर्स्ट थिंग इज देयर अ काइंड ऑफ लैंग्वेज बैरियर, और शुड आई बी बाइलिंगुअल और पर्टिकुलरली इन हिंदी, एंड सेकेंडली हाउ मच टाइम डू आई हैव टू स्पीक? So there is no language barrier. You can speak bilingually, and so the session could last for 1 hour and 1 hour 15 minutes. Okay. So would there be an interactive session also? Would there be questions from your side? Yes, sir. If you are free, if you have enough time for questions, then we will surely have a question session also at the end of your lecture. Yeah, so let's keep it interactive, okay, and we'll keep the some time for that, okay, within this time frame of 1 hour, 1 hour 15 minutes for some question answer, and then I will speak whatever I have to speak, initially, okay. So this about Amit, do you want to speak something, or should I start? sir, sir, just one thing for our volunteers. Yeah. Just so volunteers, if you are not aware, this सुमित सर के आइडिया से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हमारा जो पहला सेशन हुआ था उसमें हमारा सेशन किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर हुआ था। उस टाइम पे सुमित सर ही ने वो सेशन हमारे लिए कंडक्ट करवाया था। तो शायद अगर सर का कंट्रीब्यूशन ना होता, सर का मोटिवेशन, सर का हेल्प हमारे बीच ना होता, तो शायद आज हम यहाँ तक ग्रो नहीं कर पाते। तो उसके लिए तो पहले सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, और बाकी सारे वॉलंटियर्स से अनुरोध है लास्ट तक आप सेशन से जुड़े रहें ताकि आप बहुत कुछ सीख पाए आज। थैंक यू अमित, मतलब मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, पर ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप ये इस तरह से बोलते हैं। बट इज दिस आल्सो रिकॉर्डेड? क्या ये सेशन रिकॉर्ड भी होता है? आई गेस सर फॉर our YouTube lectures we record, but for now this lecture is not being recorded. Okay. So today's topic, which is about the philosophy of Swami Vivekananda, okay.
सबसे पहले तो ये एक मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि वाई अगेन, ओके, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद, वाई इज ए डे डेडिकेटेड टू स्वामी विवेकानंद। क्यों एक दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद के को आज हम याद कर रहे हैं, क्यों आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, क्यों बार बार स्वामी विवेकानंद जो है वो किसी न किसी तरीके से हमारे, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना में, हमारे दिन, आप कह सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी तरीके से हमारे बीच में जो है वो आते रहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसी से स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेन्युइनली कभी भी उस टॉपिक के बारे में बोल ही नहीं सकता जब तक कि वो खुद उसमें इन्वेस्टेड ना हो। मैं ऊपरी सतही तौर पर तो कई चीजों के बारे में बोल सकता हूं, पर अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय पर बोलना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैंने खुद उसमें कितना, मतलब अपने आप को अपना समय समझने में, उसको पालन करने में कितना समय दिया है, किस तरीके से मैंने उसको समझा है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जब मैं बताऊं तो मैंने इस प्रश्न को हमेशा से पूछा, और यहाँ पर 2-3 तरीके से जो है यहाँ पर विवेकानंद कौन, क्यों, कैसे और क्या रेलिवेंस है उनका, क्यों मैं उनके बारे में पढ़ूं, समझूं, सुनूं, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि, और आज का दिन काफी उपयुक्त दिन है। अगर आप देखिए, इट्स ए वेरी सुटेबल डे टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो मैंने इसके बारे में काफी सोचा, मैंने इसके बारे में काफी शुरुआत से ये किया, इस क्वेश्चन पर इन्वेस्ट किया कि क्यों स्वामी विवेकानंद, है ना, क्यों इनके बारे में पढ़ा जाए, क्यों इनके बारे में समझा जाए, क्यों स्वामी विवेकानंद को जो है एक तरह से एक आत्मसात किया जाए या कुछ भी किया जाए। तो ये जो है मुझे इसका उत्तर जो मिला, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि कई स्वतंत्रता संग्राम के जो बड़े नाम हैं, चाहे वो नेहरू जी का नाम हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का नाम हो, चाहे वो श्री अरविंदो का नाम हो, और कई लोग, जब आप उन्हें भी पढ़ते हैं, जब आप उन्हें भी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जरिए फिर से आप स्वामी विवेकानंद तक पहुंचते हैं कि उनके जीवन में भी, उनमें से सभी लोग किसी न किसी तरीके से जो है स्वामी जी से प्रभावित थे। एक तो ये बड़ी बात है। यानी कि अगर मैं कुछ और भी जो महान विभूति या पर्सनालिटीज थे आजादी के आंदोलन के और उस समय के या उसके बाद के समय के भी, तो भी मैं कहीं ना कहीं, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, तो कहीं ना कहीं मैं स्वामी जी तक पहुंचता हूं। तो क्या ऐसा था उनमें या उनके विचार में जिसने कि इन सारे महान विभूतियों को प्रभावित किया, पहला बात। दूसरा कि अगर आप अपने जो निजी जीवन है उसको थोड़ा टटोले, पर्सनल लाइफ को थोड़ा टटोले, तो कुछ ऐसे सवाल जो है युवा अवस्था में आपके दिमाग में आते हैं जिसके उत्तर आपको चाहिए। उदाहरण के तौर पर कि कई बार युवा अवस्था में हम जो परंपरागत तौर पर कई नियम, कई कानून, कई विचार हमें बताए जाते हैं, उन सबको हम, आप कह सकते हैं कि एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उसको कहीं ना कहीं चुनौती देने लगते हैं, कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि क्या ये चीज सही भी है ना, क्या इसमें कोई रैशनल भी है, क्या ये अंधविश्वास नहीं है। तो इस समय में जब आप देखेंगे, और स्वामी जी के जीवन से आपको काफी ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि स्वामी जी अपने समय में, अपना जो उनका जन्म और अपनी जो उनकी पढ़ाई हुई थी, वो काफी ही एक आप कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड, वेल लर्न, वेल रेड पर्सन थे। और ये जितने सवाल आज आपको कहीं ना कहीं घेरे हुए होते हैं, वो स्वामी जी को भी घेरे हुए थे। तो पर्सनल तौर पर भी अगर आप अपने जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर्सनल तौर पर भी अगर आप अपने जीवन में कुछ तरह के संघर्षों से गुजर रहे हैं, तो उसमें स्वामी जी का जो जीवन है और उनके जो शुरुआती कुछ प्रश्न है, वो प्रश्न जो कि वो अपने गुरु से भी करते हैं, रामकृष्ण परमहंस से, और जिससे वो जूझ भी रहे होते हैं, वो आपके लिए भी उतना ही रेलिवेंट है। तो ये एक बात है, मतलब क्योंकि पर्सनल तौर पर सभी को, मुझे भी, आपको भी, और सभी को इस तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या जिस ईश्वर पर को हम इतना विश्वास कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, या फिर इस तरह से विश्वास कर रहे हैं, क्या ये सब चीज सत्य है, असत्य है। ये सवाल तो स्वामी जी ने भी पूछा था। शुरुआत में अपने गुरु का मजाक तक इस बात पर उड़ाया था कि ये जो भी बातें हैं इसमें कोई तार्किकता नहीं लगती, ये आप किस तरह की पद्धति का पालन करते हैं।
तो कई तरीके के सवाल, कई तरीके का जो एक तरह से हमारे अंदर में दुविधा आती है, अगर आप जेन्युइनली उनके बारे में सोचते हैं, जेन्युइन अगर आप कह सकते हैं एक पर्सन है जो कि अपने आप को थोड़ा खंगालते हैं, तब भी स्वामी जी का जीवन जो है आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। तो एक तो हम देखते हैं कि भारत के कई प्रसिद्ध महान विभूति जो हैं, वो कहीं ना कहीं स्वामी जी के जीवन से कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि खुद अपने जीवन को अगर हम टटोले और खुद अपने जीवन को भी देखें, तो कई सारी समस्याएं जो है, कई सारी जो दुविधाएं आ रही है, वो भी स्वामी जी के जो है जीवन में आई है और उसको उन्होंने कैसे टैकल किया है, ये भी हम जान सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात जरूर हो सकती है कि आप जिस तरह से हम कहते हैं कई तरह की बातें हैं, और मैं ये नहीं कहता, मेरा पहले ही ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहे जो भी हो, वो मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। मैं बस आपको एक तरह से उसके बारे में अवेयर, या फिर एक तरह से कह सकता हूँ, बस बता देना चाहता हूँ कि ये भी बात है। बाकी आप माने ना माने, आप उसके ऊपर विचार मंथन करें, वो तो आपकी बात है, आत्मदीपो भव, है ना, वो तो आप खुद ही जो है उसको टटोले, उसको माने, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जिसमें चमत्कार भी आ जाता है। अब कई लोग जो है खुद रैशनल माइंडेड जो पर्सन है वो नहीं मानेगा इसको, तो वो कई सारे एनेक्डोट है, कई सारी कहानियां हैं, कई सारी चीजें हैं जो जिससे कि इंस्पिरेशन भी लिया जा सकता है। तो ये दुविधा है, ये आपका पर्सनल जर्नी है कि आप उसको माने या ना माने। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ काफी रेलिवेंट चीजें हैं जो कि स्वामी जी का, जिसको कि हम बिल्कुल प्रासंगिक, जिसको हम कहे बिल्कुल रेलिवेंट आज के समय के हिसाब से, उन सब चीजों को कहीं पर भी जो है नकारा नहीं जा सकता है। जिस कारण से वो जो है वो आज भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जो है हमारे सामने में उनका उदाहरण आते रहता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं वो हमें सबसे पहले जानना होगा। उससे पहले मैं बहुत ही एक संक्षिप्त स्वामी जी का जीवन परिचय आपके सामने में देना चाहता हूँ। तो स्वामी जी का जन्म आप सब जानते हैं कि नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था, और उनका जन्म जो है वो 12 जनवरी को, इसी दिन, है ना, मैंने जो अंग्रेजी कैलेंडर है 12 जनवरी को हुआ था, और वो भी कैलकाटा में उनका जन्म 12 जनवरी 1863 12 जनवरी को हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, और वो एक अटर्नी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में, और काफी प्रोग्रेसिव आइडियाज के थे। विवेकानंद को एक तरह से, इस तरह से इंग्लिश एजुकेशन देना, बाकी सब देना, वो भी एक माता उनकी भुवनेश्वरी देवी, एक काफी धार्मिक महिला, और काफी उनका एक तरह से जो है रोल था विवेकानंद की पर्सनालिटी को सेव करने में। तो दोनों ही काफी आप देख सकते हैं कि मॉडर्निटी का और ट्रेडिशन का, दोनों का एक तरह से जो है जो घर का माहौल था उसमें दोनों तरह का प्रभाव जो है उनके ऊपर था। उन्होंने, हमें पता है कि विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से जो है अपनी ग्रेजुएशन की। उस समय के हिसाब से ये सब के सब जो है बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट जो है जगह थे, जहाँ से पढ़ना लिखना सबके लिए संभव नहीं था। उनका जो सब्जेक्ट था उसमें दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, हिस्ट्री, है ना, सोशल साइंस और वेस्टर्न लॉजिक, ये सब शामिल था। और उनको बचपन से ही जो है थोड़ा जो है उपनिषद और भगवद गीता वेल रेड, ही वाज वेरी वेल रेड पर्सन, तो वो हर तरह के लॉजिक और इन सब चीजों को जो एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे। ये इनका बचपन से ही था। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्न तब आता है जब 1881 में वो रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जो है वो एक मिस्टिक लीडर और एक बहुत बड़े संत थे, जो कि दक्षिणेश्वरी काली जो टेम्पल है जो कलकत्ता में, उसमें उसके वो प्रीस्ट भी थे। और विवेकानंद शुरुआती समय में जो है वो रामकृष्ण का जो विचार था उससे थोड़े स्केप्टिकल, मतलब ही वाज नॉट वेरी मच विलिंग टू एक्सेप्ट इट, है ना, काफी ज्यादा उसके ऊपर उनको जो है दुविधा थी। पर बाद में हम जाके देखते हैं कि विवेकानंद जो है उनके वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड जो है डिवोटी के रूप में आए, है ना, ये मोस्ट डेडिकेटेड डिवोटी के रूप में आए। तो रामकृष्ण ने उनको अद्वैत वेदांत की, है ना, सभी धर्म एक हैं, इस तरह की। और जो मोटो है रामकृष्ण परम, अगर आप मिशन का मोटो देखें तो वो है दैट इज अबाउट आत्मनो। क्या है रामकृष्ण मिशन का मोटो, किसी को पता है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने लिए मोक्ष और जगत के लिए जगत का हित करना, है ना। तो अपने लिए मोक्ष कैसे हो सकता है? जगत के हित से। पर्सनल सैल्वेशन, यानी कि सिर्फ पर्सनल सैल्वेशन से कुछ नहीं होगा, बल्कि
द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज द मेन मोटो, जो कि उनके गुरु ने कहीं ना कहीं उनके अंदर में बिल्कुल एक तरीके से इनकलकेट किया, है ना। यानी कि अपने लिए मोक्ष, और किस तरीके से, जगत हिताई चाह, यानी कि जगत की सेवा करके अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना। ये एक तरह से विवेकानंद के जो है सिद्धांत का जो है मूल है। आप इस बात को समझिए, वाई विवेकानंद इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हिंदू सेंट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कम है कोई ज्यादा, पर मैं ये कह रहा हूं कि विवेकानंद सोशली क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद क्यों एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में आप कहे या नेशनल जो कहते हैं कॉन्शियसनेस में इतने इंपॉर्टेंट लीडर इसलिए है क्योंकि एक जो सर्विस की भावना है, एक मोक्ष का जो रास्ता है, वो जब जगत हित से ही खुलता है। ये विचार क्यों आया, इसमें हम इस पर भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस हद तक सेवा का भावना आना। मतलब अगर स्वामी विवेकानंद के पर्सनल जीवन को देखे और या फिर रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तिगत जीवन को देखे, तो जिस तरह का सेवा, जिस तरह से लोगों को वो जो लोक सेवा थी, या फिर दरिद्रों की सेवा है, या फिर उस तरह की जो जो सेवा का भावना है, वो इतनी ज्यादा प्रबल थी। और ये प्रबलता का कारण क्या था? ये प्रबलता का कारण जो हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं अद्वैत वेदांत की जो विचारधारा थी, द फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। क्योंकि उसमें जो ड्वालिज्म का जो इनका कॉन्सेप्ट था कि कोई दूसरा है ही नहीं, उसको उन्होंने एक तरह से उस लेवल पर पहुंचा दिया। आप कह सकते हैं कि ड्युअलिटी को खत्म करने के लिए एक उस लेवल पर अद्वैत का जो सिद्धांत है उसको पहुंचा दिया, जहां पर ये भेद एक तरह से कहीं ना कहीं जाके उनके जीवन में मिटने लगा कि कोई दूसरा भी है। तो वो जो कुछ भी कर रहे थे वो स्वयं अपने लिए कर रहे थे और अपने ही मोक्ष के लिए कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामकृष्ण का जो प्रभाव है विवेकानंद के ऊपर वो काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि रामकृष्ण से इतने प्रभावित हैं रामकृष्ण, और हमें मालूम है कि और जो रामकृष्ण है वो काली वर्शिपर, ओके, ही वाज वेरी फेमस काली वर्शिपर, बिलीव्ड इन गॉडेसेस। और विवेकानंद जब इस एज में ये सवाल हर किसी से पूछते थे कि उनको ये चाहिए था कि इसका कोई सटीक जवाब मिले, और वो हर किसी से पूछते रहते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने ईश्वर को खुद अपने आंखों से देखा? आप ये मत मुझे बताइए कि इस किताब में ये लिखा है या इस टेक्स्ट में ये लिखा है। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि क्या आपने स्वयं ईश्वर का दर्शन किया है। और इस समय में एक ही ऐसा व्यक्ति मिला, क्योंकि वो हर जगह पर उन्हें पता था कि ना सुनने को मिलेगा, क्योंकि आगे उनका काउंटर क्वेश्चन आता। तो कोई भी इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करता, या फिर किसी ने किया भी नहीं कि मैंने ईश्वर को देखा है। पर जब रामकृष्ण से वो मिलते हैं, और रामकृष्ण से पहली बार जब उनकी मुलाकात होती है, और जब वो ये सवाल वो जानते हैं कि एक मिस्टिक है, एक सेंट है, और इनके बारे में ये कहानी प्रबल है कि ये खुद स्वयं काली से जो है वार्तालाप करते हैं, तो उन्होंने यही सवाल जो है कहीं ना कहीं रामकृष्ण से भी पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा? और रामकृष्ण का सीधा साधा जवाब था कि हाँ, मैंने देखा है। जिस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जिस तरह से मैं तुमसे बात करता हूँ, उसी तरीके से मैं रोज जो है वो काली से बात करता हूँ। अब विवेकानंद को इस जवाब की अपेक्षा नहीं थी। मैं इस कहानी के अगर आप देखें तो इस पर नहीं जा रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम है इस पर नहीं जा रहा हूं कि ये कहाँ तक सही है गलत है। मैं बस इस चीज पर जा रहा हूं कि इसका असर विवेकानंद के ऊपर, शुरुआत में तो थोड़े वो स्केप्टिकल थे, पर धीरे धीरे इसका असर जो है विवेकानंद पर होना शुरू हुआ कि कोई इंसान ऐसा कह रहा है कि जिस तरीके से मैं तुम्हें देखता हूं उसी तरीके से मैंने ईश्वर के दर्शन किए। तो इसका एक इन्फ्लुएंस है, इसका एक इम्पैक्ट जो है वो विवेकानंद के ऊपर जो है वो काफी, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका असर हुआ। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक दिन हमें पता है कि जिस दिन हिज फादर डाइड, है ना, विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद विवेकानंद काफी डिस्ट्रेस में थे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में थे। बहनों की शादी नहीं हुई थी, घर में अच्छे से कुछ खाना नहीं था, उनके ऊपर खुद बेरोजगारी की एक तरह से मार थी। और इस डिस्ट्रेस में आके कहीं ना कहीं वो रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं और कहते हैं कि आप तो स्वयं ईश्वर से दिन रात बात करते हैं, तो मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाए। तो इस तरह के रिक्वेस्ट को सुन के रामकृष्ण परमहंस हंसते और कहते हैं कि मैं खुद माँ से ये सारी चीजें नहीं मांगता, तुम क्यों नहीं जाते हो और खुद मांग लेते हो? ओके, वो तुम्हारी भी बात सुन लेगी, तुम जाओ और मांग लो। एंड विवेकानंद ये बात सुन के खुद जाते हैं, और वो
मांगना चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याएं, धन आ जाए, मेरे पास वैभव आ जाए, समृद्धि आ जाए, और जाके वहां पर मांगते हैं कि हमें ज्ञान दे दो, हमें वैराग्य दे दो, हमें अपनी भक्ति दे दो। और जब वो बाहर आते हैं तो रामकृष्ण उनको पूछते हैं कि भाई क्या मांगा, मांग लिया जो आपने जो मांगने आए थे। एंड देन विवेकानंद बोलते कि नहीं, मैं तो नहीं मांग पाया। तो वो फिर उसे बोलते कि जाओ फिर से मांगो अगेन। तो 2 बार 3 बार ये चीज रिपीट होता है। देन ही सेज कि क्यों नहीं मांग पा रहे हो, है ना, मुझे मांगने के लिए बोला, तुम जाके खुद क्यों नहीं मांग पा रहे हो। एंड देन विवेकानंद से दैट इट इज लाइक कि जाके किसी बड़े राजा के यहाँ पर 1 रुपए 2 रुपए की भीख मांगने के बराबर है माँ से जाके धन और वैभव मांगना। और इसीलिए मैं जो है उससे बड़ी चीजें जो है मांग के आ रहा हूँ, जैसे कि चाहे वो धन हो, चाहे भक्ति हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो वैराग्य हो। अब ये जो कहानी है, ये इस समय में पहली बार विवेकानंद को ये रियलाइज होता है कि जो उनके गुरु जो काली वर्शिप कर रहे थे, वो उस चीज का रियलाइजेशन उनके अंदर में भी होना शुरू होता है कि नहीं, कोई फेमिनाइन ताकत है जो कि इस तरह से ब्रह्म के रूप में जिसका एक जो है मैनिफेस्टेशन है ना, ब्राह्मण का एक मैनिफेस्टेशन है। आपको ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि रामकृष्ण और विवेकानंद कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस को एक साथ लेके चलते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर अद्वैत वेदांत, अब देखिए अद्वैत वेदांत हम उसको ट्रेस कर सकते हैं ऋग्वेद में, है ना, इसमें कोई नहीं है कि इसका कुछ ना कुछ श्लोक या कुछ ना कुछ ऐसा भाग है जो कि ऋग्वेद में है, जो कि फर्दर डेवलप होता है उपनिषदों में, भगवत गीता में, और भी ज्यादा अगर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका एक निचोड़ रूप में जो है कहीं ना कहीं कहा गया है, जिसके ऊपर स्वामी जी ने खुद कर्म योग और बाकी सारी किताबें लिखी। उसके बाद आदि शंकराचार्य उसको एक बहुत ही एक आप कह सकते हो उसमें और भी ज्यादा डेवलप करके और उसको एक बड़े पैमाने पर पहुंचा देते हैं। लेकिन एक तरह से हम कहें कि विवेकानंद जो है और रामकृष्ण जो है, उसका एक तरह से प्रैक्टिकली उसको एक अलग ऊंचाइयों तक जो है आप कह सकते हैं इसको पहुंचा सकते हैं। और ये वो लोग थे जो कि अद्वैत वेदांत के साथ मूर्ति पूजक भी थे। ये अब यहाँ पर एक भारतीय खुद संस्कृति का भी एक समन्वय है, आप कह सकते हैं कि अद्वैत वेदांत में खुद जो रामकृष्ण के गुरु थे तोतापुरी, जो उनको अद्वैत वेदांत सिखाने आए थे, और उन्होंने ये बात जाना था कि ये तो काफी सिद्ध पुरुष है, इसको ये तो तुरंत ही जो है आप कह सकते हैं ट्रांसीडेंस में जो है वो जा सकता है, चला जाता है, तो इसको आसानी से ये इसको अद्वैत मिल जाएगा क्योंकि जो चीजें हमने इतनी साल प्रैक्टिस करके अर्जित की है, इसके पास तो वो काफी नेचुरली दिखती है कि है रामकृष्ण के पास। और फिर भी वो कहते थे रामकृष्ण को मेडिटेट करने में, और मेडिटेट अद्वैत वेदांत में तो किसी भी मूर्ति, किसी भी भगवान पर नहीं, बल्कि आप कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है, खुद ही ब्राह्मण है, खुद ही उस तरीके से उस तरह की बातें सिखाई जाती थी। तो उसमें रामकृष्ण जब भी वो पूछते थे कि तुम आंख बंद करते हो तुम्हें क्या नजर आता है, एंड ही वुड से कि काली नजर आती है। एंड सो तोतापुरी वुड गेट वेरी एंग्री कि भाई ये क्या बात हुई, हम तो आपको अद्वैत सिखा रहे हैं और आप तो अपने दिमाग में जो है एक देवी देवता को ला रहे हैं, है ना, आप उससे ऊपर उठो, उससे ऊपर की बात करो। एंड इनिशियली तोतापुरी को भी ये रियलाइज होता है, एंड देन वो खुद भी मरना चाहते हैं, खुद मतलब स्वयं से ही अपना एक तरह से वो चाहते हैं कि मुझे समाधि मिल जाए, मैं हो जाऊं। उनको काफी दिनों तक समाधि नहीं मिलती है। उस केस में रामकृष्ण कह रहे थे कि मैं आपको समाधि नहीं लेने दूंगा। तो फिर वो पूछते हैं कि भाई अब तो छोड़ दो, अब मुझे लेने दो। देन ही सेज कि अच्छा तुम ही बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। तो ही सेज दैट यू एक्सेप्ट काली। ये कहते हैं कि कैसे हम अद्वैत में करें। तो ही सेज देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है अद्वैत की जो फिलॉसफी है और काली में ही। जस्ट हिज एक्सप्लेनेशन इज दैट कि जिस तरीके से आग होती है और उसकी दाहिका शक्ति होती है, यानी फायर अपने में तो कुछ नहीं होता है। फायर जब जलाने पर आए, जब वो चाहे वो कुक करे, चाहे किसी चीज को जलाए, तो उसी तरह से ब्रह्म जो है वो फायर है और काली जो है उसका वर्किंग ताकत, यानी कि इट वर्क्स। ओके, जब ब्रह्म वर्क करने पर आता है तो वो काली का रूप ले लेता है। तो दिस इज हाउ अगेन यू नो अ ग्रेट टीचर लाइक तोतापुरी, जिन्होंने उनको अद्वैत की शिक्षा दी, वो उल्टा उनसे ये सीख के जाते हैं कि किस तरीके से काली वर्शिप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अलग अलग ट्रेडिशंस है, अगर आप देखें तो इन सब का एक तरह से समन्वय हो रहा है, और स्वामी विवेकानंद पर इन सब चीजों का काफी ज्यादा असर है ना, किस तरह से अलग अलग टाइप के ट्रेडिशन जो है सामंजस्य में एक तरीके से आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप जरूरी नहीं है कि आप इन सब में से किसी चीज पर, ये खुद भी रिफ्लेक्शन की बात होता है, ये खुद भी सीखने की बात होती है, समझने की बात होती है। कुछ चीजें आप एक्सेप्ट करेंगे, कुछ चीजें आप इसमें से रिजेक्ट करेंगे, पर ये इस तरीके से जो है विवेकानंद के साथ, और आप जान सकते हैं कि इस माहौल में
एक तरह से रामकृष्ण परमहंस जो है उनको शुरुआत में ट्रेन करते हैं। तो 1886 में लगभग उन्होंने जो मोनास्टिक ऑर्डर है ना, वो एक तरह से जिसको आज हम लोग बेलूर मठ कहते हैं, है ना, वहां पर उसकी स्थापना हुई 1886 में। और विवेकानंद कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक जर्नी पर 1888 से लेकर के 1893 में चले गए। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है और इसका काफी इन सब लोगों को मैंने आप कह सकते हैं कि रामकृष्ण के मरने के बाद जो है एक बड़ा असर पड़ता है, उसमें ये मोनास्टिक ऑर्डर बनाते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद विवेकानंद जो है एक आध्यात्मिक जर्नी पर 1888 से लेकर के 1893 के बीच में जो है चलते। तो इनका अब से नाम जो है वो स्वामी विवेकानंद हो जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त। अब ही नो लॉन्गर रिमेन्स नरेंद्र नाथ दत्त, क्योंकि वो अब एक आप जैसे जैसे कह सकते हैं मॉन्क, एक सन्यासी बन चुके होते हैं और पूरे भारत का वो भ्रमण करते हैं, है ना, और हर जगह वो देखते हैं कि भारत में क्या है। तो उस समय के भारत में, कॉलोनियल इंडिया में उनको गरीबी, भूखमरी और कहीं ना कहीं जहालत हर तरह की जो है वो देखने को मिलती है ना। तो लोग जो हैं और वहाँ का जो हालात है, कहीं ना कहीं विवेकानंद को ये जो हालात है, लोग है, इसकी और इसकी जो फिलॉसफी है, ये काफी जो है उनके फिलॉसफी को मोल्ड करने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उनको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि पर्सनल सैल्वेशन का कोई मतलब नहीं जब तक कि लोगों की सेवा नहीं की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु के द्वारा उनके अंदर में ये कह दिया गया था या फिर ये चीज उनके अंदर में आ चुकी थी कि कोई भी जो है वो पराया नहीं है ना, सभी जो है अपने हैं। पराया होना ही और उसका भाव होना ही विवेकता की कमी है, ज्ञान की कमी से ही ये चीज उत्पन्न हो सकती है कि कोई दूसरा है। इसलिए सब अपने हैं, और जब सब अपने हैं तो फिर किसी को आप डिस्ट्रेस में, किसी को इतना ज्यादा अगर आप कह सकते हैं कि उस तरीके से गरीबी में, भूखमरी में आप देख नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और हम जानते हैं कि इस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं लेके उन्होंने जो सितंबर 11 1893 में जो सबसे फेमस जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो कि शिकागो में हुआ था, उसमें उन्होंने भाषण दिया, जिसको हम कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का जो फेमस उनका भाषण है, वो वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने दिया 1893 में। अब यहाँ पर ये एक बात बड़े मैंने दिलचस्पी की है कि देखिए, जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने काफी चीजें यहाँ वहां पर रिप्रेजेंट की। वो एक बड़े सिंपोजियम का हिस्सा था जिसे हम वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहते हैं, जिसमें कि दुनिया किस ओर जाएगी, है ना, ये सारी चीजें वहां पर डिस्प्ले हो रही थी शिकागो में। उसी समय वहां पर एडिसन, टेस्ला जैसे बड़े वैज्ञानिक भी मौजूद थे और कई बड़े लोग थे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मॉडर्न थिंकर्स आप कह सकते हैं। और उसी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दुनिया के अलग अलग धर्म के नेतृत्व करने वाले अलग अलग लोग आए थे, जिसमें स्वामी विवेकानंद थे। उसमें उन्होंने जो एक बात कही कि जो ये वाइब्रेंसी और ये जो यूथफुलनेस जो वेस्टर्न नेशन का है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो कह सकते हैं वैज्ञानिक चेतना जो कि पश्चिम की है, और पेशेंस और आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस जो पूरब का है, इन दोनों को कहीं ना कहीं आके मिलना होगा। देखिए, विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं और ये बात सबसे रेलिवेंट बात है आज। हम आज सीधे सीधे जो है कुतार्किक होके क्या कहते हैं कभी कभी कि हमारे पास तो सब कुछ था, हमारे पास ये है वो है, या मॉडर्न साइंस अगर ये बोल रहा है तो इसको हम नकार देते हैं क्योंकि ये शास्त्रीयता में नहीं है। विवेकानंद क्या कह रहे हैं? विवेकानंद ये कह रहे हैं कि ये जो यौवन है या फिर ये जो डायनामिक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो पश्चिम के पास है, और पूरब का क्या, पूरब की जो एक तरह से उसका जो धैर्य है और उसका जो एक एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है, उन दोनों को मिलना होगा इस संसार को बेहतर बनाने के लिए। तो ये बात वो बिल्कुल एक ब्रिज जिसको हम कहते हैं, एक पुल बांध रहे हैं पूरब और पश्चिम के बीच में, जिसमें दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों का रोल है। वो एक ब्रिज बांध रहे हैं एक तरह से प्राचीनता और आधुनिकता के बीच में भी, जिसमें कि दोनों का बराबर रोल है। वो पूरब और पश्चिम, प्राचीन और न्यूतन, और दो इसके बीच का एक जो है एक पुल बांधने की काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं इसकी स्वीकार्यता होती है, इस बात को लोग जो है मानते हैं, है ना। जिस तरह से विवेकानंद में हमने देखा है कि अब यस दिशा, कुछ पूछना है आपको? सर, कैन यू रिपीट इट? किस चीज को मैं रिपीट करूं, बताइए। सर, यही जो विवेकानंद जी ने बात कही थी अपने काउंसिल में। नहीं, इनकी बात यही थी कि जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये था कि जो
पश्चिमी देश का जो ये वैज्ञानिकता है, ये जो नई सोच है, ये जो रैशनैलिटी है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, और पूरब का जो अनुभव है और पूरब का जो धैर्य है ना, पेशेंस है, उसमें अनुभव है, उन दोनों को जो है एक तरह से मिलना होगा, एक अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि फ्यूचर बनाने के लिए। तो वो दोनों के जो है महत्वपूर्ण एलिमेंट को जो है लेते हैं, पूरब और पश्चिम को भी और प्राचीन और नवीनतम को भी, दोनों के बीच में जो है एक पुल का जो है एक तरह से उनका विचार जो है वो काम करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विवेकानंद के विचार का कोर है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूनिवर्सल टॉलरेंस है, हमने ये सारे भी एनेक्डोट सुने विवेकानंद के बारे में। जब एक महान एक क्रिश्चियन महिला उनके पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे हिंदू बनना है, मैं एक अच्छा हिंदू कैसे बन सकती हूँ। और विवेकानंद उन्हें यह कह के बिल्कुल मना कर देते हैं कि अगर आप एक अच्छे ईसाई बनते हो तो आप एक अच्छे हिंदू खुद ब खुद बन जाते हो। तो ये जो एक बात है, ये जो एक भावना है, उन्होंने ये बात समझ लिया था। और रामकृष्ण परमहंस की ये पूरी टीचिंग बहुत पहले से थी कि कोई अंतर नहीं है, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर आप धर्म को ईमानदारी से और लोक हित में फॉलो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग थियोलॉजिकल रीडिंग्स में नहीं जा रहे, उसमें कई तरह की बातें, कई कॉन्फ्लिक्ट है, पर उनको ये पूरा विश्वास था कि किसी भी धर्म का, है ना, क्योंकि अगर पूरे के पूरे अगर उनका विश्वास अटूट था, है ना, क्योंकि लास्ट में हम जानते हैं कि विवेकानंद अपने जीवन के अंतिम समय में इस बात को और रियलाइज करने लगते हैं कि वो कुछ नहीं है अपने में, बल्कि ही वाज, और रामकृष्ण परमहंस वाज जस्ट यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय काली टू फुलफिल हर ओन पर्पस। ये विवेकानंद अपने अंतिम जो है दिन में ये कहते हैं कि मैं जीवन भर जो है ये मूर्खता करता रहा और समझता रहा कि इट वाज आई हु वाज गोइंग टू सेव माय रिलीजन और प्रोपोगेट इट, है ना, उसको फैलाने में, उसको बचाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है, या फिर मैं ये करूंगा, या इस तरह से मैं करूंगा। एक एनर्जी मुझे लगती थी ये करने के लिए, एक ये विश्वास था। पर ये मुझे अभी रियलाइज हो रहा है दैट इट वाज ऑल जस्ट मतलब कहीं ना कहीं मैं एक बस माध्यम मात्र था। ओके, क्योंकि वो ये अपना बार बार ये रेवलेशन कहते हैं कि काली यूज टू टेल हर कि एट लास्ट, मतलब अपने जीवन के अंतिम फेज में, कि यू आर गोइंग टू सेव मी, है ना, मतलब कि तुम जो है धर्म को बचाओगे, हमें बचाओगे। और तो ये बात उनको रियलाइज होने लगा था, इट इज नॉट दैट आई विल सेव इट, बट आई एम जस्ट एज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि मैं एक माध्यम हूं उस मैसेज को पहुंचाने का। तो इसलिए जो है अगर आप देखें, मैं यही बात हमेशा कह रहा हूं कि इस हद तक डुअलिटी को मिटा देना कि कोई दूसरा लगे ही ना तो विचारों के आधार पर, ना कोई ईसाई है या कोई इस्लाम का फॉलोवर है, उस लेवल पर भी नहीं, और ना व्यक्तिगत आधार पर अगर कभी किसी की सेवा करना हो तो उस तरीके की भावना आए। तो ये कोई आसान चीज नहीं आना, है ना, यानी अपना जो मोक्ष है ना, आत्म मोक्ष, मोक्षताम जगत हिताई चा, जिसको हम कहते हैं, ये अलग, ये इसी तरीके से आ सकता है जब इस तरीके की दृढ़ संकल्प और इस तरह से आप कन्विंस हो जाए एक तरह से अपने दर्शन को लेके। ठीक है, तो हर धर्म जो है एक ही ट्रूथ की तरफ लेके जाता है, ये सारी की सारी बातें उनमें थी। आज जो हम एक तरह से आपको माने रामकृष्ण मिशन के कई सन्यासी इस बात को कहते हैं कि कई बार जब वो अमेरिका में किसी स्कूल में या किसी जगह पर जहाँ पर योगा के ऊपर कुछ हो रहा होता है कार्यक्रम, तो उन्हें बुलाया जाता है और वो जाते हैं, और जब बोलते हैं तो कई बार बच्चे जो हैं, जो 10 साल के, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं, वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपके इंडिया में भी योगा है। तो ये जो सवाल वो पूछते हैं कि क्या आपके इंडिया में भी योगा है ना, तो उन्हें, कई बच्चों को ये लगता है कि योग जो है, और योग इतना ज्यादा इंटीग्रल पार्ट हो गया आप कई पश्चिमी देश या अमेरिका का, कि उनको लगता है कि ये तो हमारे ही यहाँ पर है और ये यही का जो है ओरिजिन है इसका। तो इस चीज को कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो योग का जो प्रचार प्रसार हुआ पश्चिमी देशों में, है ना, और इस लेवल तक हुआ कि कई बार अब तो वहाँ के बच्चे खुद ही समझ रहे हैं कि क्या भारत में भी योग है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको इतना उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो इस तरह के मासूम सवाल पूछ रहे हैं। पर ये एक तरह से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो वेदांत सोसाइटी है और योग की जो समझ है, ये विवेकानंद के द्वारा 1894 में कहीं ना कहीं ये किया गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और विवेकानंद 1897 में फिर वापस भारत आ जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं वो रामकृष्ण मिशन जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
और ये इसका मुख्य काम था जो अलग अलग मानवतावादी एस्पेक्ट है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से जो कहीं पर कोई आपदा आए तो उसमें एक तरह से ये पूर्ण रूप से जो है अपने आप को इसने डेडिकेट करके रखा है और पिछले कई सालों से ये काम भी कर रही है। अगर आप देखें तो रामकृष्ण परमहंस काफी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कुछ चीजें थे। अब मैं विवेकानंद के कुछ इंपॉर्टेंट कोर आइडियाज आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझे तो मैं कुछ उसमें से विचार बताना चाहूंगा। तो ये एक जीवन था और वो काफी वर्ष जिए नहीं, 39 वर्ष की उम्र में 39 एट द एज ऑफ 39 विवेकानंद डाइड। ही हैड दिस थिंग अगेन, उनके अंदर में ये भावना बहुत पहले से आ रही थी कि मैं कहीं ना कहीं 40 वर्ष तक नहीं जीऊंगा। सो एट अ वेरी यंग एज अगर आप देखें विवेकानंद का, आपने कोई भी बुढ़ापा का तस्वीर नहीं देखा होगा। आपने जो भी देखा होगा कि यंग विवेकानंद को देखा होगा। और ये अच्छी बात है कि स्वामी जी हमारे स्मृति में हमेशा युवा ही है ना। फिर चाहे आज हो, आज से 25 साल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी जो युवा होगा उसके लिए वो युवा ही रहेंगे, है ना। तो एक तरह से युवा दिवस बड़ा ही सटीक मुझे लगता है विवेकानंद के लिए मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी जी खुद कभी बूढ़े नहीं हुए हैं ना, और ना हम कभी हमारे पास कोई ऐसा इमेजिनरी है कि स्वामी जी बूढ़े हैं, तो वो हमेशा रहेंगे। यस मोहित, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो मोहित, आपका कोई सवाल है? हेलो, ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो विवेकानंद के जो कुछ है, तो जिसमें एक जो विचार आता है जो कि बहुत ही वो नॉन डुअलिज्म, जिसको हम लोग अद्वैत वेदांत कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार है, जिसमें हमें पता है कि शंकराचार्य और शंकराचार्य के बाद जो वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस है और यूनिटी ऑफ ऑल बींग्स है, यानी कि सारी की सारी जो एग्जिस्टेंस है, जितनी भी चीजें हैं वो सब एक हैं, और कहीं ना कहीं हर कोई जो जितने भी बींग है वो एक है। ये कहीं ना कहीं एक उनसे आया है ना। और ये जो वेदांत का जो विचार है ना, तो अल्टीमेट रियलिटी जो है वो एक है ना। तो वो कहते हैं, विवेकानंद का ये बहुत फेमस कोट है जो कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, each soul is potentially divine, each soul is potentially divine, the goal is to manifest द डिविनिटी विदिन, है ना। तो हर एक जो आत्मा है वो अपने में जो है वो दिव्य है। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, वो जो है उस डिविनिटी को बाहर लाने का होना चाहिए। वो कैसे बाहर आएगा? वो बाहर तब आएगा जब हम अपने अंदर से सारे विकार, सारे भेदभाव और सारे उस तरह की जो चीजें हैं वो मिटा लेंगे, है ना। तो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विदिन। ये जो विवेकानंद का कोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिलॉसफी है बराबरी के लिए। दूसरा उनका जो काम है वो कर्म योग पर है। अब ये युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म योग जो है, या पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन, है ना, कर्म योग जो है, जिसमें कि वो कर्म योग जो है वो कहते हैं कि आध्यात्मिक ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको कर्म के ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें कि वो निष्काम कर्म की बात करते हैं। निष्काम कर्म का मतलब सेल्फलेस एक्शन, जो कि भगवत गीता के माध्यम से भी आपने सुना है ना। तो आप कहीं ना कहीं उसमें सेवा एक भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा का मतलब होता है सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, है ना। कहीं ना कहीं सेवा का भाव होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो समाज का जो वेलफेयर है वो लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोक संग्रह। और इस पर विवेकानंद का एक बढ़िया कोट फिर से है, जिसको वो कहते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, है ना। वही बस लेते हैं जो द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, है ना। बस वही रहते हैं जो कि दूसरों के लिए रहते हैं, बट वरना बाकी तो मुर्दे के समान है। ओके। फिर उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम है वो ज्ञान योग पर है। ज्ञान योग का मतलब है नॉलेज का जो पाथ है। तो नॉलेज जो है यहाँ पर विवेकानंद किस तरीके से कहते हैं, जैसे कि वेदांत या फिर आप उपनिषदिक लिटरेचर में जो नॉलेज को समझते हैं कि नॉलेज जो है वो एक तरीका है जो कि सत्य और असत्य के बीच में अंतर कर सके, है ना। यानी ज्ञान जब आपके पास होगा तो आप सत्य और असत्य के बीच में भेद कर पाएंगे। आप सत्य और असत्य के बीच में एक तरह से अंतर समझ पाएंगे। ओके। सो व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज देन in a kind of a way to understand or discriminate between what is true and what is false. Okay? और ये कैसे समझा जाता है? तो उन्होंने कई तरीके दिए। नेति नेति, है ना, नॉट दिस, जो कि उपनिषद का एक मेथड है, आपको पता है, ऑफ नेगेटिंग नॉन एसेंशियल थिंग्स एट्रीब्यूट्स, है ना।
कि ये भी नहीं वो भी नहीं, है ना। तो नीति नीति का एक मार्ग है। दूसरा जो आत्मन का मार्ग है, जो ट्रू सेल्फ प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने बताया, और विद्या और अविद्या के बीच में, नॉलेज और इग्नोरेंस के बीच में भी उन्होंने काफी कुछ बताया है ना। तो इंटेलेक्चुअल जो इंक्वायरी है एक तरीके से कि सत्य और असत्य के बीच में, जो मटेरियल प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, मात्र जिसका जीवन का उद्देश्य एक ही रह गया है कि अपने शरीर की और अपने इच्छाओं की पूर्ति करना, उसके लिए ये जो असत्य है, ये जो इग्नोरेंस है जो कि आपके जीवन को ढका हुआ है, क्योंकि आप जब तक जाएंगे, ये तो विवेकानंद खुद ही कहते हैं कि बुद्ध ने भी इस बात को बता दिया कि जब तक आप इस चीज, मात्र आपका उद्देश्य ये है और जब तक आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं, आपके हाथ में दुख के सिवा कुछ नहीं लगेगा। तो ये इस इग्नोरेंस को खत्म करने के लिए ज्ञान योग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भक्ति योग, इसके बारे में हमने अभी बात भी की, क्योंकि भक्ति योग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें कि वो एक पर्सनल दी थी, जिसको एक तरह से कहीं ना कहीं इष्ट देवता के रूप में जो है, जैसे कि वो कहते हैं कि काली वर्शिप इज माय पर्सनल फैड, है ना, वो मेरा पर्सनल एक तरह से काली वर्शिप है। वो कभी भी जो है पब्लिकली काली वर्शिप प्रीच नहीं करते थे। अगर आप ये जितने भी मैंने आपको घटनाएं बताई, आपने देखा होगा ये पर्सनल इंटरेक्शन में ज्यादा थी। रामकृष्ण परमहंस से थी या भगनी निवेदिता से हो, कभी भी अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा पब्लिक जब डायलॉग होता था उसमें काली वर्शिप के बारे में या इस तरह की बातें नहीं करती थी। जरूर अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल समय में वो इस चीज से एनर्जी लेते थे, जरूर अपनी इंस्पिरेशन लेते थे, पर कहीं ना कहीं ये पर्सनलिटी जो है, भक्ति जो है, वो काफी पर्सनल चीज है ना। और इसमें कहते भी हैं कि एक तो इष्ट देवता की जो पूजा है, दूसरा शरणागति, यानी कि देखिए स्वामी जी जिस तरह का जीवन जी रहे थे, जिस तरह के असंभव चीजों को उन्होंने एक तरह से संभवता पर ला के खड़ा किया। रामकृष्ण के मरने के बाद मिशन किधर जाएगा, किस तरीके से वो लोग किस तरह से अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करेंगे, यही सब बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन इन सब के बावजूद वो अमेरिका गए, अमेरिका में प्रचार प्रसार किया, यूरोप में प्रचार प्रसार किया, फिर भारत आके रामकृष्ण मिशन स्थापित करते हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये सब कुछ वो कहते हैं कि शरणागति जिसको कहते हैं, यानी कि एक तरह से डिवाइन विल जो था, जिसको वो बार बार कहते थे कि जस्ट हाउ काली मैनिफेस्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रामकृष्णा, और या फिर विवेकानंद को एक इंस्ट्रूमेंट बना के जो है उनके शरण में हम चले गए और बाकी सारी चीजें होते रहा। तो वो उनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था जिसको वो मानते थे इस तरीके से। तो वो लिखते भी है इसमें, टू वर्शिप गॉड एज ए स्टोन इमेज इज बेटर देन नॉट वर्शिपिंग एट ऑल, यानी ईश्वर को मात्र एक पत्थर के समझ में मैंने वर्शिप करना, इससे अच्छा है कि आप उसको वर्शिप नहीं करें। बट अ बेटर वर्शिप इज टू सी गॉड इन द इमेज ऑफ द मैन, है ना। तो एक अच्छा जो वर्शिप करने का तरीका ये है कि खुद मनुष्य में आप ईश्वर को देखें, है ना। यानी कि ईश्वर को मात्र एक पत्थर में पूजने से बहुत बेहतर तरीका क्या है कि आप हर एक मनुष्य में ईश्वर को देखें। ओके, तो he didn't consider it as a kind of worship at all, जैसा कि हमें उनके पब्लिक डिस्कोर्सेस से पता चलता है। उसके अलावा यूनिवर्सलिज्म जो है, जो सर्वधर्म समभाव है, उसकी भावना उनके अंदर बहुत ज्यादा है। अब ये हम जानते हैं जो ऋग्वेद में भी है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, है ना, कि दैट ट्रूथ इज वन एंड इट इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज। तो ये जो है विवेकानंद ने कहीं ना कहीं अपने जीवन भर इस यूनिवर्सलिज्म जो है या इस सर्वधर्म संभाव को जो है अपने से लगा के रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उनकी किसी भी टीचिंग की। उसके अलावा आध्यात्मिक मानवतावाद या स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विवेकानंद के फिलॉसफी का है, क्योंकि ये एक तरह से जो आध्यात्मिकता थी और एक सामाजिक जो जिम्मेदारी थी, यानी कि किसी की भी जो सामाजिक जिम्मेदारी थी, उसके बीच में उन्होंने काफी एक ब्रिज का फिर काम किया था। दरिद्र नारायण का अगर आप कहें तो दरिद्रों में नारायण को देखना, यानी कि ईश्वर को देखना, उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया था। और मानव सेवा माधव सेवा, इस तरह से वो कहते थे, यानी मानव की सेवा जो है वो माधव की सेवा है। तो आप देख सकते हैं विवेकानंद का जितना मैनिफेस्टेशन है स्पिरिचुअलिज्म का या फिर भक्ति का भी, वो सब का सब जो है कहीं ना कहीं सोशल सर्विस या फिर लोगों की सेवा, लोगों के कष्ट को दूर करने में जा रहा है। ये सबसे बड़ी खासियत है अगर हम देखें स्वामी जी की। तो उन्होंने लिखा अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, है ना। ये सबने सुना है, इसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान निबोध्य छोरिका धारा निश्चिता दूरत्या दुर्गम पथा कवियो वदंती, है ना। ये बहुत दुर्गम पथ है ना। किस तरह से है, बिल्कुल छुरी की धारा के जैसा है, इस पर चलना आसान नहीं है। क्यों चलना आसान नहीं है?
क्योंकि देखिए इसमें जो भी चीज है ना, जो भी अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो सामाजिकता को, समाज को, उसकी भलाई को डेडिकेट करने, आप और हम जो है आज इतने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के सोच भी नहीं सकते किस तरह से 39 वर्ष में उस व्यक्ति ने क्या क्या करके दिखाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना, जिसको हमें समझना होगा। उनके जीवन को इसीलिए कहता हूँ पढ़िए, किस तरह से उनका इंस्पिरेशन कहाँ से आया, किस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो हैं करके दिखा दी इतने कम उम्र में। इसके लिए बहुत विश्वास चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए और बहुत बड़ी समझ चाहिए, है ना, जो कि विवेकानंद में है। उसके बाद एक चीज जो उन्होंने दिया जो कि प्रैक्टिकल वेदांत है, जिसका कि प्रायोगिक वेदांत, जो कि जीवन के रोजमर्रा के जीवन में एप्लीकेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ वेदांता इन आवर डेली लाइफ या डे टू डे लाइफ जो है, या हमारे जो दिनचर्या है, डे टू डे लाइफ है, उसमें किस तरह से प्रैक्टिकल वेदांत जो है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जिसको इन्होंने बोला कि बाल शक्ति या फिर यूथ का जो पावर है ना, उसको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं एक्शन में उन्होंने तब्दील करने के लिए कहा। नारी शक्ति के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा किया और विद्या और ज्ञान के बारे में बहुत ज्यादा किया। तो वेदांत तो कहीं ना कहीं वेदांत से, अब जैसे ध्यान जो है, अगर आप देखें विवेकानंद कहते हैं कि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ depends upon your quality of experience, and the quality of experience depends upon the quality of your mind or concentration. तो अगर आप सिंपल सी बात है कि अब देखिए जो वेदांत में भी जो एक तरह से ध्यान है, तो ध्यान को कहाँ लेके जाते हैं? ध्यान को लेके जाते हैं कि ध्यान करने से जो है कहीं ना कहीं आपका जो है जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान, कंसंट्रेशन एक तरह से ध्यान ही है ना, तो कंसंट्रेशन है उससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। क्योंकि जब आप ध्यान मग्न होते हैं, कोई भी काम पूर्ण ध्यान से करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ये ध्यान की चूकी है जो कि एक किसी भी तरह की घटना को जो है दुर्घटना में बना देता है। अगर आपका ध्यान नहीं है तो घटना दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। तो ध्यान जो है वो एक्सपीरियंस को बनाता है और एक्सपीरियंस जो है सम टोटल आपके जीवन को बनाता है। तो ये ध्यान से एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आपका जीवन, है ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके से वेदांत को प्रैक्टिकली सम टोटल आपके जीवन से कैसे जोड़ रहे हैं। तो ये विवेकानंद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि कहीं ना कहीं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ये किया जा सकता है, किस तरह से ध्यान को आप जो है एक तरह से जीवन में जो है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद फेथ इन सेल्फ, है ना, यानी आत्मविश्वास के बारे में उनका काफी कुछ कहना था कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के, बिना सेल्फ रिलायंस के कुछ नहीं हो सकता। तो श्रद्धा, है ना, फेथ इन ओन सेल्फ एंड ओन इनेट ऑप्शनल। विवेकानंद यही कहते थे कि जिसको खुद में विश्वास नहीं हो, भगवान में विश्वास करके क्या करेगा, है ना। खुद में विश्वास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और सेवा धर्म स्वधर्म भी होना चाहिए, खुद की भी जो है एक तरह से अपना जो ड्यूटी है और अपना जो कॉलिंग है वो करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि खुद में विश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्वयं बोला, इंटरप्ले ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसको वो कहते थे विज्ञान और आध्यात्म के बीच में, विज्ञान और आध्यात्म के बीच में कहीं ना कहीं एक समन्वय होना चाहिए, है ना, जिसको एक तरह से वो कहते हैं कि साइंस एंड रिलीजन विल मीट एंड शेक हैंड्स एंड पोएट्री एंड फिलोसफी विल बिकम फ्रेंड्स, है ना। पोएट्री और फिलोसफी भी एक तरह से उसके बीच में भी दोस्ती होगा और साइंस और रिलीजन के बीच में भी कहीं ना कहीं कोई दोस्ती होगी। पर इसमें यही चीज है कि हमें ये चीज समझना होगा कि साइंस जो है, विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान और विज्ञान की यूटिलिटी जो है, जब भी एप्लीकेशन की बात होती है तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे दुनिया में घटनाक्रम हुए हैं जिसमें विज्ञान का दुरुपयोग भी किया गया है। तो यहाँ पर स्वामी जी जो जिस धैर्य की बात, जिस एक्सपीरियंस की बात पूरब की करते हैं, वो बहुत ही रेलिवेंट हो जाती है। तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं जो हूँ अपना ये वक्तव्य खत्म करूंगा। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है आप यहाँ से लेके जाएंगे, ओके, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है या कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं और जैसा सर ने कहा, किसी का कोई प्रश्न है तो वो फर्शा भी पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ खड़ा करके बता सकता है या लिख सकता है।
शायद किसी का कोई प्रश्न है नहीं, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अमित जी टू गिव थैंक यू नोट टू आवर स्पीकर। थैंक यू नोट से पहले सर मेरा एक क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सर क्वेश्चन ये है कि हमारे दाक्षी से जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं सर, उनके लिए विवेकानंद जी ने यूथ के लिए तो बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, जिनके बारे में हमने पिछले पूरे 1 घंटे में आपसे सुना और समझा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे उन्होंने खुद रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया और उस चीज को इतना बढ़ाया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके क्या विचार रहे हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मतलब अगर उसका ध्येय आप देखें, है ना, और कभी आप जो फोकस कीजिएगा कि रामकृष्ण मिशन का जो है वो कैसा है, मतलब उसका सिंबल क्या है ना। सिंबल में एक सांप, वो जो है एक नाग बना हुआ है ना, और उसके बीच में जो है जो उसका एक ध्येय है, आप कभी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उस पर वो एक ही मतलब उनका मेन उद्देश्य है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, है ना, जो कि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, है ना, अपने लेवल पर, वैश्विक लेवल पर किसी तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं, वो एक जगह आए, एक जगह एकत्रित हो और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से वो कोई ना कोई बदलाव लाए, है ना। उनका मात्र यही है। अब उसमें हो सकता है कि उसमें भी थोड़ा मत भिन्नता हो सकती है। मत भिन्नता होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बात यह है कि आपका उद्देश्य क्या है ना। जैसे अभी अगर दाक्षी बना है तो उसका एक उद्देश्य होगा, तो क्या उस उद्देश्य को हम जो है, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसको इनकल्केट कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग पर्सनल तौर पर जो है, जो आपकी जो कोर टीम है, वो कितनी बार जब भी कोई नया मेंबर आता है और जब भी कोई इस तरह के लोग आते हैं जो भी नए इनकलकेट होते हैं, तो क्या आप वार्षिक तौर पर या 6 माने अर्धवार्षिक तौर पर, क्या आप एक खुद अपने में 2 दिन का वर्कशॉप कीजिए, जिसमें बाकी बाहर से कोई लोग ना आके, आप जो खुद पहले के मेंबर हैं, वो जो नए मेंबर है उसको ट्रेन करें, उसको अपने विचारों से अवगत करवाएं, है ना। क्योंकि जो उनका ऑर्डर है, अगर आप देखें जो मोनास्टिक ऑर्डर उन्होंने किया, वो यही तो कर रहे हैं। उसी तरह की ट्रेनिंग को तो आगे निकल के आगे जो है बढ़ावा दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर हम ये सोचे कि लोग जो है स्वयंभू तरीके से चीजें समझेंगे, तो ऐसा नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलने में और उसको एक अच्छे तरीके से दिशा देने के लिए आपकी जो खुद की जो लीडरशिप है, उसको भी एक समय में जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, उसको आगे आके लगातार उस तरह की बातें जो है और उस तरह का जो आपका जो मुख्य मुद्दा है, उसको लोगों को समझाना होगा। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं, उसके फंक्शनिंग से समझ सकते हैं कि वो कितना इस हिसाब से जो है चल रहा है। डिस्ट्रेस में हो सकता है कि आज आपके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, कल कुछ ना जुड़ा हो, उसमें जो है कभी भी घबराना नहीं है ना। उसमें लोग घबरा जाते हैं, लोग इस तरीके से जो ये करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धैर्य रखना, विश्वास रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने काम के प्रति जो इंटेंशन आपका होना, वो प्योर होना चाहिए। विवेकानंद का एक ही चीज है कि इंटेंट कहाँ है, क्या अंततः जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें इंटेंट आपका क्या है। इंटेंट आपका लोक कल्याण है या इंटेंट आपका मात्र और मात्र स्वयं कल्याण है ना। तो इंटेंट की बात यहाँ पर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंट यहाँ पर, इंटेंशन जो है बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ ले। ठीक है, तो अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। सो इसी मोटिव के साथ दाक्षी से आप लोग जुड़े रहें। कभी भी आप या तो कुछ सीख के जाओगे या फिर आप जीत के जाओगे। ताकि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। आपके उद्बोधन से जो आज हमें सीखने को मिला है, मुझे उम्मीद है कि हम अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को समझेंगे, उसे अपने जीवन में लागू करेंगे और समाज में जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम उन विचारों को फैलाएंगे और एक अच्छे समाज को बनाने में हमारी भूमिका निभाएंगे। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला।
हम इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। दुष्यंत सर हैं क्या? दुष्यंत सर थे अभी? सर ने भी ज्वाइन किया। कशिश जी, दुष्यंत हैं क्या? जी अभी तक थे शायद, अभी लीव कर दिया उन्होंने। हाँ, सो दुष्यंत सर भी हमारे किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। जस्ट अभी किया उन्होंने। थैंक यू अमित, है ना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आगे भी आने वाले समय में मेरा ऑल द बेस्ट दाक्षी को। और जब भी जो होगा हमारे लिए भी कोई अगर उस तरह की बात हो, सेवा हो, तो हम लोग भी करने के लिए अग्रसर हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब अगर ना जुड़ते तो ये कार्यक्रम का जो कराने का उद्देश्य था वो पूरा ना हो पाता। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, इससे हमारा हौसला बढ़ा है और हमें उम्मीद है कि हम जुड़ेंगे। हम अगला मकर संक्रांति जिसमें डॉक्टर जानवी हुड्डा, जो कि पल महाविद्यालय की प्रोफेसर है, वो जुड़ेंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कृपया उस सेशन में जुड़ें। और जैसा कि आज आपको सीखने को मिला, उस दिन भी मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में हमारा कार्यक्रम, जैसा आप सभी को विदित है, कि वंदे मातरम के साथ समाप्ति होती है। तो आप सभी से अनुरोध मातरम के लिए तैयार हो। आप बहुत Thank you all. Can I leave now? Thank you everyone. Thank you for such a participation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.